Morning students. Today we are going to discuss digestive system in Hadmenia. Now whenever we have to discuss digestive system in any organism, we study two things. One is alimentary canal and other is glands associated with the digestive system. In Hadmenia, the most important part of digestive system is pharynx. And why we say that it is the most important part. I told you earlier also that it is a filter feeder. That means it has to filter the food from the incoming water, and pharynx plays a very important role in doing so. Why? Because pharynx has large number of mucus secreting cells which basically entraps the food from the incoming water current. And if you talk about pharynx, then it is present inside the atrial cavity. Atrial cavity is what? Atrium. I told you in last lecture that atrium is basically a body cavity in Hadmenia which is ectodermally lined. Now the wall of pharynx is fused to the mantle along the anterior and ventral side. अब mental क्या था? Mental body wall थी Hadmenia की, यानी pharynx जो है वो mental के साथ fuse है anterior और ventral side पे, लेकिन dorsal side पे it is free, right? Now if you talk about alimentary canal, then alimentary canal is complete. That means it begins with mouth and ends with anus. It has the following parts. अब माउथ कहाँ पे था? माउथ को हम ब्रेंकियल एपर्चर भी बोलते हैं. अब ब्रेंकियल एपर्चर is present on the top of branchial siphon, and I told you in my last lecture that branchial aperture and atrial aperture both are guarded by forelips or lobes of text. अब अगर हम ब्रेंकियल साइफन की बात करें, then it is a narrow tubular cavity which is lined by ectoderm and it is called स्टोमोडियम. हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम एंड मेसोडियम. स्टोमोडियम इज द फर्स्ट पार्ट एंड इट इज लाइंड विद ectoderm. Ectoderm, and it basically represents the buccal cavity. At the base of stomodium is a ring of branchial tentacles. अब अगर आपको याद हो तो last lecture में I showed you in the diagram that branchial जो siphon है उसके एंड में we have branchial tentacles. ऐसे ही tentacles atrial siphon में भी present होते हैं. Branchial tentacles क्या करते हैं? They act as a sieve, allowing only minute particles to go into the body of the animal. They are richly innervated. That means they are richly supplied with blood, and their number is around 64. And below the tentacles is a smooth prebranchial zone having the swollen dorsal tubercle made of two spiral coils. ये अभी मैं आपको next slide में diagram में दिखाऊंगी. Then it will be more clear to you. There is two thin ciliated ridges, the peripharyngeal bands laying parallel and encircling the upper end of the pharynx. The posterior one of the two peripharyngeal bands is joined mid-dorsally to the dorsal lamina and mid-ventrally with the endostyle. Now इस स्लाइड में दो डायग्राम्स हैं. वी हैव फिगर 1 एंड फिगर 2 एंड दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग वी हैव स्टडीड सो फार. तो हम शुरू से शुरू करते हैं. सी वी हैव दिस ब्रेंकियल एपर्चर एंड यहाँ पे हमारे पास है एट्रियल एपर्चर. ब्रेंकियल एपर्चर functions as mouth and atrial aperture functions as anus. अब ब्रेंकियल एपर्चर is located on the top of a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला है? ब्रेंकियल साइफन. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है? एट्रियल साइफन. एंड यू कैन सी हियर ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन दोनों के पास ही टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं. ब्रेंकियल साइफन में जो है उनको हमने बोला है ब्रेंकियल टेंटिकल्स और यहाँ वालों को हमने बोला है एट्रियल टेंटिकल्स. फाइन. उसके बाद माउथ के बाद लीड्स इनटू बक्कल कैविटी. अब बक्कल कैविटी क्या है? माउथ जो है वो तो ब्रेंकियल एपर्चर हो गया, यानी ब्रेंकियल साइफन के टॉप पे जो ओपनिंग है उसको हमने माउथ बोला है. लेकिन जो ब्रेंकियल साइफन के अंदर कैविटी है दैट इज बक्कल कैविटी. नाउ दिस बक्कल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स. अब फेरिंग्स क्या है? ये जो सारा बास्केट लाइक अपीयरेंस आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑल फेरिंग्स. फाइन. अब फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आएगा? फेरिंग्स के बाद हमारे पास आएगा ओएसोफेगस. कैन यू सी दिस ओएसोफेगस लेबलिंग?
ये रहा ओइसोफेगस, दिस इज ओइसोफेगस. देन ओइसोफेगस लीड्स इनटू स्टमक, ये स्टमक है, and then you have intestine, and then finally you have rectum, and then we have anus. Fine. तो digestive system शुरू कहाँ से हुआ? Mouth, then buccal cavity, then pharynx, then oesophagus, then stomach, then intestine, and then we have rectum, and then we have anus. तो आप you can clearly see in this figure that the maximum portion of the digestive system is being टेकन बाय फेरिंग्स. और मैंने आपको इसका रीजन भी बताया, क्योंकि हडमेनिया जो है फिल्टर फीडर है और उसको खाना पानी में से लिटरली एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए फेरिंग्स शुड बी लार्ज सो दैट इट कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम द इनकमिंग वाटर करंट. फाइन. अब हम अगर डिटेल देखें फेरिंग्स की, अब ये डायग्राम थी एलिमेंट्री कैनाल सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड रिमूव ऑफ द मेंटल, मतलब हमने मेंटल निकाल के डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग से रखा है. तो ये डायग्राम है. बेसिकली दिस डायग्राम इज जर्नल एनाटॉमी ऑफ हडमेनिया. लेकिन जो फिगर 2 है दैट इज फेरिंग्स कट ओपन, मतलब हमने जब फेरिंग्स को कट किया तो ये ऐसा नजर आ रहा है. लास्ट यस्टरडे मैंने आपको एक लिंक भेजा था जिसमें डायसेक्शन दिखाई थी ऑफ सॉलिटरी एसिडियन. आई होप आप सबने वो देखी हो, और उसमें क्लियरली फेरिंग्स के अंदर ये फोल्ड्स नजर आ रहे थे. कैन यू सी दिस? जहाँ पे ये रेड मार्किंग्स में लगा रही हूँ, दीज आर बेसिकली फोल्ड्स. और ये फोल्ड्स क्या करते हैं? आपको पता है जितने भी फोल्ड्स होते हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में भी फोल्ड्स हैं, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्टिव एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. तो सेम इज द केस हियर. ये सारे जो फेरिंजियल फोल्ड्स हैं दे बेसिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फेरिंग्स. और फेरिंग्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फेरिंग्स जो है वो फूड को कैप्चर कर सकेगा. Now if you talk about the pharynx की anatomy, then pharynx can be divided into two parts. We have branchial zone and pre-branchial zone. अब जहां मैं ये सर्कल कर रही हूँ रेड में, this whole जो आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा जो है this is branchial zone. ठीक है. और ये जो है ये वाला, ये pre-branchial zone, ये वाला. ठीक है. तो let me just color the branchial zone and pre-branchial zone differently. See, ये जो सारा है this is all branchial zone, ये पूरा. Fine. And now I am going to color yellow. This is pre-branchial zone. So pharynx is divided into two zones. You have branchial zone and pre-branchial zone. I hope it is clear to all of you. अब अगर हम बात करें प्री ब्रेंकियल जोन की, तो ये लेबलिंग हम येलो से ही कर देते हैं इसकी. ये है प्री ब्रेंकियल जोन. तो प्री ब्रेंकियल जोन कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हमारा माउथ है, यहाँ से ये इट इज ये हमारा ब्रेंकियल साइफन है, और यहाँ से माउथ है, ये ब्रेंकियल साइफन है हमारा. ठीक है. तो अब ये जो हमारी टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं ये ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं. फाइन. अब प्री ब्रेंकियल जोन जो है फेरिंग्स का, उसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये ब्लैक सा स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज डॉर्सल टुबरकल. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि डॉर्सल टुबरकल होता है इसमें, एंड इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नर्वस सिस्टम. फाइन. और प्री ब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल जोन, ये वाला पोर्शन फेरिंग्स का और ये वाला पोर्शन फेरिंग्स का is separated by two bands. Now I am going to color these bands by green. ये bands. ठीक है. आपको ये दो bands नजर आएंगे. इसमें से जो ऊपर वाला band है that is termed as anterior peripharyngeal band. ये ऊपर वाला. और जो नीचे वाला है that is posterior peripharyngeal band. और इनके बीच, दोनों बैंड्स के बीच में जो स्पेस है that is termed as peripharyngeal group. Fine. I hope I am clear to all of you. Let me just repeat it. जो ब्रेंकियल सैक है फेरिंग्स का पार्ट, एंड जो प्री ब्रेंकियल जोन है, फेरिंग्स के दो पार्ट्स हैं, प्री ब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल सैक. ब्रेंकियल सैक जो है वो ये बड़ा वाला है, और प्री ब्रेंकियल जोन ये छोटा वाला. ठीक है. और ये दोनों को सेपरेट कौन कर रहे हैं? दो बैंड्स.
और उन बैंड्स के नाम क्या है, इंटीरियर पेरिफ्रेंजियल बैंड एंड पोस्टीरियर पेरिफ्रेंजियल बैंड, और दोनों के बीच में, इन दोनों बैंड्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरिफ्रेंजियल ग्रूव। अब आपको क्लियर है कि पेरिफ्रेंजियल बैंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पेरिफ्रेंजियल बैंड्स दोनों के दोनों दे आर बेसिकली सेपरेटिंग द प्रीब्रेंकियल जोन ऑफ फेरिंग्स फ्रॉम द ब्रेंकियल सैक। फाइन। अब एंटीरियर पेरिफ्रेंजियल बैंड अगर आप देखो, लेट मी जस्ट मार्क इट विथ ग्रीन, ये ऊपर वाला जो बैंड है, जस्ट सी इफ आई एम एबल टू मेक इट, सी, ये जो ऊपर वाला बैंड है, ठीक है, ये ऊपर वाले बैंड के मिडल में यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, जो उसको मैंने अभी आपको बताया डॉर्सल टुबरकल बोलते हैं। और ये जो पोस्टीरियर वाला बैंड है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल लैमिना, ठीक है। और ये डॉर्सल लैमिना जाके कहाँ खुलता है, ये वाले स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस। तो हुआ क्या, माउथ है, माउथ कहाँ पे है, ब्रेंकियल अपर्चर, ब्रेंकियल अपर्चर इज बेसिकली माउथ, ब्रेंकियल साइफन की टॉप पे यू हैव माउथ, एंड देन वी हैव बक्कल कैविटी, जो ब्रेंकियल साइफन की कैविटी है उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। देन वी हैव फेरिंग्स। अब फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्री ब्रेंकियल जोन जो बहुत छोटा है और एक ब्रेंकियल जोन जो बहुत बड़ा है। और ब्रेंकियल जोन में बेटा होता क्या है, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फोल्ड्स और इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड इट हैज लार्ज नंबर ऑफ स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा स्पेसेस, जैसे आप टोकरी देखते हो ना, टोकरी में कहीं स्पेसेस होते हैं, कहीं केन, अगर आप केन की टोकरी इमेजिन करो तो कहीं पे केन होती है, कहीं पे स्पेसेस होती हैं। तो फेरिंग्स बिल्कुल ऐसा होता है इसका, बिकॉज इसमें जो स्पेसेस होती हैं दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर, और ये जो स्पेसेस है दैट इज लाइंड विद सीलिएटेड सेल्स, सीलिएटेड एंड म्यूकस स्क्रीटिंग सेल। तो पानी जैसे ही फेरिंग्स में आता है तो वो जो सीलिया है उसको, पानी को मूव करने में हेल्प करते हैं, और जो म्यूकस है वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। फाइन। तो उसके बाद फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स जो है वो डॉर्सल लैमिना के साथ कनेक्टेड है, एंड डॉर्सल लैमिना इज देन कनेक्टेड टू ओएसोफेजियल ओपनिंग। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फेरिंग्स बाय नाउ। तो हम अगर इसकी थ्योरी देखें तो फेरिंग्स जो है इट ऑक्युपाइज मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू, प्री ब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल सैक, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया। प्री ब्रेंकियल जोन जो है वो छोटा है, इंटीरियर पार्ट है, एंड इट्स वॉल इज स्मूथ विदाउट फोल्ड्स, सीलिया, स्टिग्मेटा और हिस्टन्स। फाइन। तो ये स्टिग्मेटा क्या है, अभी मैंने आपको बताया फेरिंग्स की टोकरी लाइक अपीयरेंस है, उस टोकरी में जो स्पेसेस हैं, जो खाली जगह है, दैट इज बेसिकली स्टिग्मेटा। फाइन। ब्रेंकियल सैक को हम फेरिंग्स कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मेजर पार्ट है फेरिंग्स का। वैसे तो फेरिंग्स जो है दैट आल्सो इंक्लूड्स प्री ब्रेंकियल जोन एंड इट इज अ पोस्टीरियर लार्जर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स फिल मोस्ट ऑफ द एट्रियल कैविटी। द वॉल ऑफ pharynx is perforated by several rows of stigmata arranged in transverse row. Through these cavity of pharynx communicates with the atrial cavity. That means ये जो stigmata है इससे atrial cavity के साथ communicate करता है pharynx. And the edges of stigmata, अब मैंने आपको बताया कि जितने भी pores present हैं, जितने भी stigmata present है pharynx के अंदर, they are lined with cells which have cilia. और वो सीलिया क्या करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं ताकि पानी जो है फेरिंग्स में सारी जगह पहुंच सके। क्यों पहुंच सके, ताकि फेरिंग्स के अंदर जितने भी म्यूकस क्रीटिंग सेल्स हैं वो म्यूकस के अंदर फूड को ट्रैप कर सके। बिटवीन द स्टिग्मेटा एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स, नाउ एक चीज और है, जितने भी फेरिंग्स के अंदर स्टिग्मेटा प्रेजेंट है उसमें वी हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बार्स जिनमें ब्लड वेसल्स हैं, इसीलिए जो फेरिंग्स की अपीयरेंस है दैट इज लाइक अ बास्केट। फाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज डॉर्सल लैमिना। अभी मैंने आपको दिखाया था जो पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड था वहां से एक लंबा सा स्ट्रक्चर अराइज हो रहा था। यू कैन सी दैट डायग्राम अगेन, दैट वाज टर्म्ड एज डॉर्सल लैमिना। तो डॉर्सल लैमिना कहाँ से अराइज हुआ है, डॉर्सल लैमिना इज अ थिन फ्लैप लेइंग inside the mid dorsal roof of the pharynx and it bears ciliated projections called linguids. होता क्या है बेटा, pharynx से सारा फूड आके डॉर्सल लैमिना में गिरता है और डॉर्सल लैमिना में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं which are termed as linguids, और ये linguids ciliated होती हैं। तो ये linguids क्या करती हैं, उस फूड को इकट्ठा करके
ओएसोफेगस में सेंड करती है। मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था कि जो पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड है that leads into dorsal lamina and then that leads into ओएसोफेगस। तो सारा का सारा खाना फेरिंक्स से डॉर्सल लैमिना में आता है और डॉर्सल लैमिना से इट गोज इनटू ओएसोफेगस। तो डॉर्सल लैमिना runs from the posterior peripharyngeal band to the opening of oesophagus. Dorsal lamina its linguids. Linguids क्या है? Ciliated projections है which are present inside the dorsal lamina. Can bend one side to form a sort of tube through which food laden mucus passes. उसके बाद हमारे पास है एक स्ट्रक्चर विच इज टर्म्ड एज एंडोस्टाइल। अब अगर आपने लास्ट डायग्राम जो फिगर 2 है वो आपने देखी हो तो उसके बेस पे जहाँ ओएसोफेगस एंड होता है वहाँ पे यू कैन सी द लेबलिंग एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल क्या है? फेरिंक्स के बेस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एंडोस्टाइल कहते हैं कि लोअर कॉर्डेट्स का थायराइड ग्लैंड है। जैसे हमारे अंदर थायराइड ग्लैंड होता है वैसे लोअर कॉर्डेट्स डोंट हैव थायराइड ग्लैंड, लेकिन एंडोस्टाइल रिप्रेजेंट्स द थायराइड ग्लैंड और इन लोअर कॉर्डेट्स। अब ये जो एंडोस्टाइल है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सी एंडोस्टाइल में है क्या क्या? वी हैव glandular epithelium. Glandular epithelium, can you see this? Glandular epithelium means it secretes mucus and then we have cilia. तो होता क्या है, जितना भी मैंने आपको बताया कि फेरिंक्स के अंदर जो म्यूकस स्क्रीटिंग सेल्स होते हैं तो वो सारे जो बेसिकली म्यूकस स्क्रीटिंग सेल्स होते हैं फेरिंक्स के, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल में ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है और ये जो सीलिया है ये मिलके क्या करते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्क्रीट्स म्यूकस एंड दिस सीलिया सीलिएटेड सेल्स ये कॉन्टिन्यूसली बीट करता है और उस म्यूकस को सारे फेरिंक्स में फैला देता है। फाइन। तो एंडोस्टाइल का क्या फंक्शन है? एंडोस्टाइल बेसिकली हेल्प्स इन covering the pharynx with mucus so that whenever the water having food enters the pharynx वो food उस mucus में trap हो सके। Fine. The longitudinal grooves of 4 gland cells. अब endostyle में होता क्या है? endostyle में you have 4 gland cells के tract होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मैं just green color से I will try to show you. सी एक ये पार्ट है जो स्क्रीट करता है, एक ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है और एक ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है और एक ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। मतलब 4 जगह हैं ऐसी एंडोस्टाइल में जहाँ पे म्यूकस स्क्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट हैं और बाकी जो सारी जगह है वहाँ पे हमारे पास सीलिएटेड सेल्स हैं। ठीक है। द मिडल रो हैज सेल्स ऑफ लॉन्ग सीलिया। मिडल रो कौन सी है? मिडल रो आई विल शो यू विद ब्लू कलर। सी ये जो है दिस इज सीलिया, सीलिएटेड सेल्स। तो ये पूरा जो है दिस इज अ सेक्शन ऑफ एंडोस्टाइल। अब इसमें 4 जगह ऐसी हैं 1 2 3 और 4 4 जगह ऐसी हैं जो मैंने ग्रीन से मार्क करी हैं जहाँ पे ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस क्रिएट करेंगे और बाकी जो सारी जगह हैं वहाँ पे सीलिएटेड सेल्स हैं ताकि ये म्यूकस को फैला सकें अच्छे से फेरिंग्स पे। लेकिन उसमें से भी जो सबसे सेंटर वाली प्लेस है वहाँ पे सीलिया जो है बहुत बड़े हैं, दे आर हाईली इलोंगेटेड। फाइन। द ग्लैंड सेल्स ऑफ एंडोस्टाइल secretes mucus which are driven laterally by ciliated cells. Fine. Endostyle is homologous to thyroid glands of vertebrates. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। The posterior region of pharynx is known as oesophageal area. तो जो फिगर मैंने आपको 2 दिखाई थी उसमें फेरिंक्स के बेस पे आपको ओएसोफेजियल नजर आया था, ओएसोफेजियल एरिया नजर आया था। एंड ओएसोफेजियल एरिया क्या है? बेसिकली ये इट इज अ एपर्चर टाइप थिंग which has 2 semicircular lips। और ओएसोफेजियल एरिया के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ओएसोफेगस। तो अभी तक जो हमने किया जो ब्रेंकियल एपर्चर है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज माउथ। इट लीड्स इनटू ब्रेंकियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन के अंदर बक्कल कैविटी है। उसके बाद हमारे पास फेरिंक्स आ गया। फेरिंक्स में 2 पार्ट्स हैं, प्री ब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल सैक। प्री ब्रेंकियल जोन में कोई स्टिग्मेटा नहीं है, कोई सीलिया नहीं है, लेकिन ब्रेंकियल सैक गिव्स अ बास्केट लाइक अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मेटा एंड सीलिएटेड सेल्स। बास्केट लाइक अपीयरेंस देता है बिकॉज उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ताकि
बीच में हमें स्पेसेस नजर आती हैं उसमें, दैट्स वाई वो ब्रेंकियल सैक हमें टोकरी जैसा लगता है. फाइन. अब प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल सैक, दे आर डिवाइडेड फ्रॉम ईच अदर बाय टू पेरिफेरेंजियल बैंड. एक इंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड है, एक पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड है, और दोनों के बीच में जो ग्रूव है दैट इज टर्म्ड एज पेरिफेरेंजियल ग्रूव. इंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड के ऊपर डॉर्सल टुबरकल है. देन वी हैव डॉर्सल लैमिना. डॉर्सल लैमिना में बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो बेसिकली फूड को फेरिंग्स से इकट्ठा करके ओइसोफेगस में भेजते हैं, और ओइसोफेगस की जो ओपनिंग है उसको हम ओइसोफेजियल एरिया बोलते हैं, which is having two semicircular lips. Fine. उसके बाद आ जाओ ओइसोफेगस पे. ओइसोफेगस is a short tube having four ciliated grooves and it is lined with direct the food into stomach. अब stomach ओइसोफेगस छोटी सी होती है and ciliated grooves हैं इसमें. cilia क्यों चाहिए? Because food has to continuously move to different parts of the alimentary canal. तो पहले हमारे पास फेरिंग्स में गया, फिर डॉर्सल लैमिना में गया, फिर उसके बाद ओसोफेगस में गया. ओसोफेगस से स्टमक में फूड जाना है तो उसको धक्का मारने के लिए यू रिक्वायर continuous beating of cilia. Then stomach is wider than oesophagus but its walls are thin and have tubular branching pyloric gland. Pyloric gland अभी हम पढ़ेंगे digestive glands में. The tubules of pyloric gland open by a single aperture in the middle posterior fold of the intestine. Stomach opens into intestine. Now if you talk about intestine, it has two parallel limbs forming the U. The intestine joins a short ciliated rectum opened by anus into the dorsal part of the atrial cavity cloaca. Now what is this cloaca? देखिए बेटा दो terms हैं, you have anus and cloaca. Intestine leads into rectum, rectum into anus. लेकिन एनस जो है वो इट ओपन्स इनटू क्लोएका. क्लोएका जो है वी कॉल क्लोएका एज अ टर्म फॉर कॉमन ओपनिंग बिटवीन द डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव. दैट मीन्स एनस जो है वो क्लोएका में जाके खुलता है. एंड व्हाई वी कॉल दैट स्पेस एज क्लोएका? बिकॉज उसी जगह रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके डक्ट्स भी खुलते हैं. फाइन. तो एनस जो है दैट इज आउटलेट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम. बट अगर एनस डायरेक्टली एक्सटीरियर में नहीं खुल रहा है, इट ओपन्स इनटू a space along with the reproductive ducts, then it is termed as cloaca. Or cloaca then leads into atrial siphon, opening outside through atriopore or atrial aperture. Like branchial siphon, atrial siphon is lined by ectoderm and hence represents proctodium. अब आपको याद होगा हमने कहा था कि buccal cavity is lined by ectoderm and it is termed as stomodium. तो उसको हमने स्टोमोडियम बोला था. बकल कैविटी कहाँ थी? ब्रेंकियल साइफन के अंदर. अब एट्रियल साइफन जो है उसकी लाइनिंग जो है दैट इज आल्सो एक्टोडर्म और वो रिप्रेजेंट करती है प्रोक्टोडियम को. और एट्रियल साइफन के ऊपर हमारे पास कौन सा एपर्चर है? एट्रियल एपर्चर, या जिसको हम बोलते हैं एट्रियोपोर. और एट्रियोपोर में क्या जाके खुलता है? क्लोएका. So then coming to digestive glands. Now if you talk about digestive glands, we have liver. Liver laying against the stomach is a dark brown bilobe liver, the left lobe being larger. The liver is formed of large number of fine tubules embedded in matrix of connective tissue having blood sinuses. These tubules unite to form 11 to 12 hepatic duct which open separately into the stomach. The hepatic excretion has a powerful amylase, protease and weak lipase. So all these enzymes are secreted by liver and they help in digestion. Bile pigments are also present in the liver and stomach are starch-like granules which probably store food. Then we have pyloric glands. It is located on the walls of posterior part of stomach and intestine. Pyloric gland is branched and its duct tubules unite to form a common duct which opens in the intestine. Its secretion is pancreatic in nature. अब हमारे अंदर पैंक्रियाज है बट एडमिनिया डोंट हैव पैंक्रियाज. लेकिन पाइलोरिक ग्लैंड की जो secretions है they resemble the secretions of pancreas. It also act as an excretory organ. अब नेक्स्ट है कि हाउ एडमिनिया फीड्स. फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन. फूड आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, पीसेस ऑफ डिकेइंग एनिमल्स, प्लैंक्टॉन्स एंड एल्गी आर इट्स फूड. ज्यादा बड़े
पार्टिकल्स हडमेनिया में एंटर ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ब्रेंकियल टेंटिकल्स जो हैं दे एक्ट एज अ सीव, तो बड़े पार्टिकल्स को वो बाहर ही रोक देते हैं। सीलरी फीडर है, क्यों? बिकॉज इट हैज अ सीडेंटरी हैबिटेट, जगह जगह घूम के खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि हडमेनिया पानी को अपने अंदर ले लेता है। फाइन। Cilia bordering the stigmata keep up constant current of water entering the mouth and passing ciliated epithelium into the pharynx, from where it goes through stigmata into atrial cavity and then to entire exterior through the atrial aperture। तो पानी आता कहाँ से है? पानी का करंट कौन मेंटेन करता है? स्टिग्मेटा। फेरिंग्स के अंदर स्टिग्मेटा है, वो कॉन्टिन्यूसली बीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बॉडी के अंदर खिंच जाता है, फाइन, और वो फेरिंग्स से बाहर भी चला जाता है थ्रू एट्रियल अपर्चर। द करंट ऑफ वाटर कैरीज माइन्यूट और फूड पार्टिकल्स विच पास इनटू फेरिंग्स एंड दे सेटल इनटू फेरिंजियल वॉल। फिर उसके बाद क्या करते हैं? ग्लैंड्स ऑफ एंडोस्टाइल स्क्रीट म्यूकस। ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द म्यूकस इज लैश्ड आउट ट्रांसवर्सली फ्रॉम द एंडोस्टाइल बाय सीलिया एट राइट एंगल्स टू द एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल क्या करता है? पूरे फेरिंग्स में म्यूकस को फैला देता है बाय सीलिया, और फूड पार्टिकल्स जो फेरिंग्स के अंदर फंसे हुए होते हैं, they are then transferred to dorsal lamina and then they are passed to oesophagus। अब डॉर्सल लैमिना में भी मैंने आपको बताया that it is covered by languids, it has languids। languids क्या करते हैं? बेसिकली फूड को डायरेक्शन देते हैं, that means फूड ओइसोफेगस में मूव करता है और उसके बाद वो स्टमक में जाता है। अब डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में मैंने अभी आपको बताया कि दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, वी हैव लीवर एंड पाइलोरिक ग्लैंड। लीवर क्या करता है? इट secretes yellowish brown digestive gland into the stomach। It has many enzymes and amylase which splits carbohydrate into maltose, a protease which break down proteins, and a weak lipase which probably acts on fats। Liver also stores starch as reserve food material। Then the pyloric gland is an accessory digestive organ. It is probably pancreatic in nature। Food is digested mainly in the stomach and absorptions occur in intestine। The ciliated rectum then expels the excreta with much force that can short it out 10 centimeter through the atrial siphon। तो जितना भी undigested food material है that is expelled out from the body of Edmania through atrial siphon, और उसकी help कौन करता है? rectum। rectum is ciliated, तो rectum के जो cilia है they beat continuously and they keep on expelling the undigested food material through atrial siphon।